Okay, so this is the exercise, last exercise of this chapter. The very first question is, Kirti, be ready to write the homework, okay? Now, the first question is, find the areas of rectangle whose sides are given. Certain questions are given to you. As you can see that there are two dimensions, so we have to find the area of rectangle. In this question number 1, B part and C part are not there in your syllabus, so you don't have to do. Only one part I will solve. A part is your homework क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है. You can easily find. Just apply the formula. Kirti, write down the homework. And D part I will solve. One unit is in terms of meter and another one is in terms of centimeter. So 2 meter 70 centimeter is your question. You have to find the area of rectangle. So you will write in solution area. Every time you solve the question for area and perimeter, do not forget to write the formula. जितनी बार आप formula लिखोगे उतनी अच्छी तरीके से वो याद हो जाएगा. So area of rectangle is equal to length into breadth. Okay, area of rectangle is length into breadth. Length is given to you as 2 meters and breadth is given to you as 70 centimeters. Since the units of the measurements are not in same terms, so we'll change the units. Let's change the centimeter in terms of meter. 2 meter into 70 multiplied by 1 by 100 meters. Okay. क्या होता था 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते थे? और इसको आप 0.01 मीटर. जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस कन्वर्जन. ठीक है? इज इट करेक्ट? क्लास 6, इज इट करेक्ट? ओके. So you will write 2 meters into 70 by 100 meter. 2 meter into, since there are 2 zeros in the denominator, so decimal point 70 मीटर तक लिखेंगे. ठीक है? 2 डिजिट्स तक जाएगा. तो 0.7. This 0 जो 7 के बाद में लगा है, that will make no difference, but since it is there, we will write. 2 times 0 will give you 0, 2 sevens will give you 14. तो 14 का 4 will write it here, 1 को will carry forward, 2 zeros is 0. Borrow को हम करते हैं add, तो it will give you 1. So your answer will be 1.4 square meter या सिर्फ only meter? What will be the answer? Square meter. 1.40 SQ can be written as square meter. So this is your answer. ठीक है? समझ में आया कैसे करना है? Yes ma'am. Okay. Ma'am. Yes ma'am. So A part is your homework. Do that. घर पे. We'll now take up the second question. Second question is the area of square. B part is not there in the syllabus. है ना? A part को कर लेते हैं. A part is, the side is given as 10 centimeter. So you will write area of, first write the question. I have directly written the solution. Area of the square. Ma'am, side into side. Very good. Side into side. I am repeating it again. Every time you write the solve the question for perimeter or area, you must write the formula. So side is given as 10 centimeter into 10 centimeter. So 10 times is 100 square centimeter. This is your answer. C part you will do as your homework. Kirti, are you writing the homework or not? I am writing the homework. Okay. So 2 का C part is also your homework.
Now question number 3. Question number 3 is the length and breadth of 3 rectangles are given as below. तीन रेक्टेंगल आपको दिए हैं अलग अलग डायमेंशंस के A B C में, तीनों का आपको एरिया निकालना है, फिर आपको बताना है कि तीनों के एरिया में which one is the largest and which one is the smallest. So this question can be done by you as homework. ठीक है, A पार्ट का जो भी लेंथ गिवन है इट इज गिवन 9 मीटर एंड 16 मीटर. ठीक है, फाइंड द एरिया, अप्लाई द फॉर्मूला एज लेंथ इनटू ब्रेथ. बी पार्ट में it is given as 17 meter and 3 meter. Just apply the formula length into breadth again. C part mein also you have to do the same thing, 4 meter and 14 meter. Again you have to find the area by applying the formula length into breadth. तीनों का आपको एरिया निकाल के क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसका एरिया लार्जेस्ट है. तीनों की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे फिर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है, लार्जेस्ट एरिया किसका है और स्मॉलेस्ट एरिया किसका है. ठीक है, दिस यू विल गेट टू नो वंस यू विल फाइंड द एरिया. तो हो जाएगा ये क्वेश्चन क्लास? Yes, ma'am. Class, will you? Yes, ma'am. Okay, Kirti, this is your homework. Okay. Now, question number 4. The area of a rectangular garden is 15 meter long. 15 meter long is 300 square meter. Find the width of the garden. Breadth. If in question it is written as breadth, it is equal to width. Breadth is equal to width. दोनों का मतलब होता है चौड़ाई. तो whether it is given breadth or whether it is given width, दोनों का मतलब क्या होता है? चौड़ाई. लॉन्ग या लेंथ कहा जाएगा तो लंबाई की बात होगी विच इज योर लेंथ. ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज अगर नया वर्ड कोई देखने को मिल जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में अब ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर गार्डन एंड इसका आपको लेंथ दिया है 50 मीटर. लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेथ इज नॉट नोन टू यू. एरिया गिवन है, दिस एरिया इज गिवन एज 300 स्क्वायर मीटर. अगर मैं इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर वर्ड को हटा देती है ना तो ये क्वेश्चन हो जाता किसका? ये हो जाता पेरीमीटर का, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और वैल्यू दी गई होती है. अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता, यहाँ एरिया ना लिखा होता. लेकिन सिंस यहाँ पे स्क्वायर मीटर दिया है तो यू मस्ट नो दैट इट इज एरिया गिवन टू अस. सो अब हमें इसमें फाइंड करना है ब्रेथ. ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अभी तक के क्वेश्चंस में हमने वो स्टेप स्किप कर दिया. सबसे पहले आपको जो भी चीजें गिवन होती है उसको लिखना है. लेंथ इज गिवन टू यू एज हाउ मच? 50 मीटर. एरिया इज गिवन टू यू एज 300 स्क्वायर मीटर. ब्रेथ यू हैव टू फाइंड. ब्रेथ इज अननोन टू यू व्हिच यू हैव टू फाइंड. सो ये जो लाइन मैंने नीचे लिखी है इसको सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना है. Whenever you are solving the questions, word problems, जो भी चीज आपको गिवन है उसको सबसे पहले लिखोगे, फिर जो अननोन है उसको लिख के फाइंड आउट करोगे, अपना फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला स्टेप यहाँ लिखना था. अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. एरिया दिया है 300, लेंथ दी है 50, ब्रेथ हमें पता नहीं है ना. तो हमने ये पढ़ा था कि when there are two sides of in a mathematical equation, this is your left hand side, that is your right hand side. तो opposite जब side change होती है, if this 50 is in multiplication with this, अगर ये जो 50 है it is in multiplication with this breadth, तो ये दूसरी साइड में आके कैसे चेंज हो जाएगा? will it be add 50 है, will it subtract or divide? है ना, तो आप b को ऐसे लिख सकते हो 300 बाय 50. दूसरी साइड जाके 50 हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, नाउ यू विल डिवाइड
this 50 by 300 by 50. This is your rough work. So 50 कितने टाइम्स? क्लियरली आप ये 30 को तो नहीं ले जा पाओगे क्योंकि 30 जो है 50 से छोटा है, ठीक है? कितने टाइम्स? 5 6 are 30 और एक is 0, remainder is 0, so this will give you 6, ठीक है? This will give you 6 unit centimeter or meter. What is the unit? It is meter. ठीक है, समझ में आया? तो यानी आपकी ब्रेथ हो गई 6 सेंटीमीटर। अब एक चीज थी, जब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? जो लेंथ गिवन है 50 है ना, लेंथ गिवन है 50, ब्रेथ गिवन है 6, ब्रेथ गिवन नहीं हमने निकाली है, तो 6 को 50 से जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट 300, ठीक है? और यही हमारा एरिया दिया है क्वेश्चन में, तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है? लेंथ गिवन है 50, ब्रेथ हमने निकाली है 6, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एरिया है 300 मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 300 आना चाहिए। तो अगर 300 आ रहा दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट, अगर 300 नहीं आ रहा दैट मींस यू हैव टू रीचेक योर वर्क। समझ में आया क्लास? क्लास इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the question number 5 is, the question says, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at a rate of 800 per meter, 8 rupees 8 per 100 square meter? प्रश्न में ये कहा गया जैसे हमने अपने घर का फ्लोर बनवाया है ना, फ्लोर इज इन रेक्टेंगुलर शेप, अब हमें उस पर बिछानी है टाइल्स, तो पहले टाइल्स को बिछाना है, सपोज दैट दिस इज योर रेक्टेंगुलर फ्लोर, ये हमारा घर का रेक्टेंगुलर फ्लोर है और इस पे बिछानी है हमें टाइल्स, तो टाइल्स ऑब्वियसली हम इस एरिया में ही बिछाएंगे। एक टाइल की वैल्यू आपको दी गई है, एक टाइल जो है 1 मीटर का एरिया अगर आप टाइल कवर कर रही है तो उसका जो रेट है वो है 8 रुपीज, 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर जो टाइल है उसका रेट जो है वो 8 रुपीज है। तो आपको इस पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले वी फाइंड द एरिया, देन अगर एक की वैल्यू गिवन है तो हम उसके हिसाब से जो हमारा एरिया है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लेंथ is, you have to write length of the rectangular plot of land, अगर मैं सिर्फ लेंथ लिख रही हूँ, कॉपी में पूरा लिख देना, 500 मीटर, B is for breadth, it is 200 meter, area of rectangular, R is for rectangular plot of land, है ना, is your length into breadth. Don't write L and B, just write completely. I don't have space, that's why I have written L into B. It will be your 500 meters into 200 meter. Okay, 2 5s are 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले 3 डिजिट्स के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। कैसे किया है कैलकुलेशन? जब भी आपको जीरोस के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर व्हिच इज नॉट जीरो, 5 2s will give you 10, फिर उसके बाद जितने भी जीरो है उनको काउंट करके लिख देना है। हियर वी हैव 1 2 1 2 4 जीरोस, तो 1 2 3 4 और ये 10 वाला जीरो। और कॉमा कैसे लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद अब आगे 2 2 2 चलता रहेगा। दिस इज द वे हाउ यू प्लेस दिस एज इंडियन नंबर सिस्टम, एंड दिस विल बी योर स्क्वायर मीटर, ठीक है? एरिया निकल आया, अब हमें निकालना है कॉस्ट, तो यू विल राइट कॉस्ट ऑफ टाइलिंग a rectangular plot, cost of tiling, cost of tiling
पर पहले 1 मीटर में कितना है उतना लिखोगे, फिर दिस इज व्हाट 1 लाख स्क्वायर मीटर में कितना है उतना लिखना है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर या पर 1 मीटर या जो भी लिखना है, पर स्क्वायर मीटर इज 8 रुपीज 8 पर 100 या रुपीज 8। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नाउ यू विल राइट कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 1 2 1 2 3 square meter. You will write rupees 8, just a minute, 8,000 पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब एक 100 स्क्वायर में 8 रुपए का कॉस्ट लगता है और हमने यहाँ पे लैक्स में निकाला, तो यू विल राइट 8 इंटू 1 1 2 1 2 3 पर 100 है तो आपको 100 लिखना पड़ेगा। जब हमने ये PER वर्ड को पहली बार पढ़ा था उसका मतलब होता है डिवीजन में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 रुपया पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये जो टर्म लिखा है 8 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो ये जो 8 है इसके नीचे ये 100 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 8/100 और जितना हमारा एरिया आया है, ठीक है, इसको वैल्यू विल सॉल्व, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 8 जो है वो 1 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 8 1 2 1 2 3 अपॉन 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट रुपीज 8,000। कैसे, लेट्स सी, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में जो 2 जीरो है तो न्यूमरेटर से 2 जीरो हटा के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यू हैव 2 जीरोस, तो यहाँ से भी 2 जीरो हटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये डिवीजन 5th क्लास में बताई गई है ना क्लास। यस, एक लेट मी सॉल्व द डिवीजन पार्ट फर्स्ट। अच्छा, यही कंफ्यूजन हो रही है ना कि 8,000 पर मीटर में हमने कैसे लिखा है। आई थिंक दिस इज द ओनली कंफ्यूजन विच यू आर हैविंग, है ना, यही कंफ्यूजन है ना। Yes. एरिया तक तो सबको समझ में आया होगा। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग की स्टेटमेंट है बेटा, उसको जब आप दोबारा पढ़ोगे तो इट इज रिटन कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर के यूनिट के एरिया में 8 रुपए का खर्चा है। पहले जब हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था तो 1 मीटर का खर्चा था। ठीक है, डिफरेंस यहीं पे आ रहा है कि जब आप 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में टाइल लगाओगे तो उसका खर्चा 8 रुपया आएगा। तो हमें जो अपना कॉस्ट है वो हमें इसी रेट के हिसाब से लगाना होगा, है ना। 100 मीटर का एरिया या 1 मीटर का एरिया में तो टाइल लगने वाली नहीं है ना। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना छोटा सा होगा, होगा कि नहीं होगा क्लास। 1 मीटर का एरिया अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो 1 मीटर के एरिया में तो टाइल लगने से नहीं, है ना, बहुत कितनी भी छोटी से छोटी आप टाइल लगाओगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 100 मीटर की बात की गई कि 100 मीटर पे ही एक टाइल को लगाया जा सकता है, अगर आप प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को समझो तो। ठीक, इसीलिए यहाँ पे 8 स्क्वायर मीटर यूजुअली क्वेश्चंस में रहता था, लेकिन क्योंकि 8 रुपया 1 मीटर स्क्वायर की एरिया के हिसाब से कोई टाइल लगने वाली नहीं है ना, और ये हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, इसीलिए जो 100 है यहाँ पे लगाया गया। इसका मतलब 100 मीटर स्क्वायर जब एरिया होगा उस पर जो टाइल बिछेगी उसका जो वैल्यू है वो है 8 रुपया। आप समझ में आया, इसीलिए हमने ये 100 को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ क्लास? डिफरेंस बस यही है बेटा, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो 1 स्क्वायर मीटर में कोई टाइल लगने वाली नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 8 रुपीज 8 पर 100 स्क्वायर मीटर किया है।
तो वो पर 100 को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। तो उसी को मैंने यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा एरिया है। कंसेप्ट वही है, जो भी आपकी कॉस्ट होती है गिवन, उसको आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम बिछा रहे हैं टाइल्स, और टाइल्स 1 मीटर स्क्वायर वाले पे लगने से नहीं, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया इन्होंने दिया है। दैट इज व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड दिस 8 बाय 100 इनटू जो हमारा एरिया आया था। अब कोई कंफ्यूजन है क्लास? इज देयर एनी? यस बेटा, व्हाट इज द कंफ्यूजन? बेटा, व्हाट? आई कैन नॉट हियर योर वॉइस। उस मेथड को अगर मेथड से लिख सकते हो हाँ लिख सकता हूँ, बट दैट शुड बी करेक्ट। सेंड दैट मेथड वंस टू मी, देन आई विल अप्रूव। ठीक है, नाउ इज इट करेक्ट? शैल वी मूव फर्दर? क्लास 6 सबको समझ में आया है पर 100 क्यों लिखा गया है? ओके, तो 100 8 टाइम्स विल गिव यू 800, है ना। 0 और ये 0 0 जो लगे रहेंगे वो, तो ये हो गई आपकी डिवीजन, हो गया वो आंसर। समझ में आ गया सारा क्वेश्चन? क्लास एक इस क्वेश्चन का बस ट्रिकी पार्ट नहीं था बेटा, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर कोई टाइलिंग की या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में किसी की फैमिली होगी, तो वो जो टाइल्स अभी आप कभी पूछने जाओगे तो वो आपको पर स्क्वायर के हिसाब से ही टाइल्स की रेट बताते हैं, है ना। तो वो 1 मीटर नहीं बताएंगे, वो 100 मीटर या जो भी उनका पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग वो टाइल का रेट आपको बताएंगे। तो if anybody is in construction business, तो he might be knowing it well, है ना। So this is your question number 5. Now we will do question number 6. ठीक है। Whenever you are dealing with maths, make sure कि जो अपने आसपास की ऑब्जर्वेशन है उसको सही रखो। अब इनिशियली जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी कि 100 कैसे आया, बट जब मैंने ये प्रैक्टिकली सोचा कि 1 स्क्वायर मीटर की तो कोई टाइल होगी नहीं, तो ऑब्वियसली वो 100 स्क्वायर फीट की ही टाइल, 100 स्क्वायर मीटर की ही टाइल लेंगे, तभी तो वो फ्लोर पे बिछाएंगे। अगर आप 1 स्क्वायर मीटर की, ऐसा नहीं है कि टाइल होगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली आप इतने छोटे से एरिया की अगर आप टाइल बिछाओगे तो आपके फ्लोर में बस टाइल ही टाइल दिखेगी ना, क्योंकि टाइल जब बिछती है तो इट इज ऑफ वेरी गुड अमाउंट। कुछ थोड़ी बिगर साइज की होती है, कुछ छोटी, पर 1 मीटर स्क्वायर की जितनी छोटी हो ऐसा लोग पॉसिबली यूज नहीं करते हैं, है ना। ये ऑब्जर्वेशन की है किसी ने कभी? क्लास बेटा, मैथ्स की किताब खुल के सिर्फ सोल्यूशन करने के बाद बंद करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो भी आपने चीजें सीखी है, ट्राई टू अप्लाई दोस थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, ओके। सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, द क्वेश्चन नंबर 6, अ टेबल टॉप, एक टेबल का जो टॉप है वो मेजर करता है 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। लेंथ यहाँ पे आपको 2 मीटर दी है, ब्रेथ दी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में आपको फाइंड करना है एरिया। राइट द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, चेंज दिस इनटू मीटर और फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, question number 7. A room is 4 meter long and 3.5 meter wide. Length जो है रूम की दी गई है कितनी? 4 मीटर लॉन्ग, और ब्रेथ या विड्थ जो भी आप कह सकते हो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दी गई है ना। And you have to find how many square meters of carpet is needed to cover the floor. ठीक है, बस इसमें कितने मीटर स्क्वायर का हम कारपेट खरीदें कि हमें कमरे में अपने फ्लोर पे बिछा सके। अगेन यू हैव टू फाइंड लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये भी होमवर्क है, इसमें कोई फैंसी कोई कॉस्ट निकालनी, जस्ट सिंपली फाइंड द एरिया। वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि हाउ मेनी मीटर स्क्वायर लिखा है, यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो मीटर में आना चाहिए। तो ये दिस सेंटीमीटर नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आई माइट change the question in examination as square centimeters, तो फिर ये वाला जो मीटर है इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना होगा। ओके, तो ये भी बहुत इजी है, बस एरिया ही निकालना है, हो जाएगा क्लास।
Yes. Yes, ma'am. Like. Yes, yes. हो के Yes, ma'am. Yes. अच्छा अच्छा एक मिनट, हो के अपने पास मत रख लेना, हो के मुझे भी भेज देना, मैं भी जरा देख लूँ, ठीक है? तो ओनली 3 क्लास. Okay, ma'am. Who is this? ओके, काम अपना डू योर वर्क एंड सेंड इट टू मी, ठीक है? उसके बाद आई चेक कैसे. बेटा प्लीज नाउ आई रिमूव यू. ओके, तो ओनली फ्यू. And will be to send. जिसका आज हो जाए ही कैन और शी मे कैन सेंड इट टुडे इटसेल्फ एट 6 PM इन द इवनिंग. बट जिसका अगर ना भी हो पाए वो कल भी भेज सकता है, देयर इज नो इशू. ओनली 3-4 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आर लेफ्ट, है ना? उसके बाद यस. मैम अगर कभी हम ग्रुप कॉल बंद कर देते हैं, अगर भूल जाती है तो हमसे मैसेज करने लगते हैं बार बार. बेटा दैट आई विल चेक. ओके, इफ इवन जो और लोग हैं अगर ग्रुप खुला, दैट डज नॉट मीन कि ग्रुप खुला तो आपको मैसेजेस ही करने. इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, बट आई विल मेक श्योर फ्रॉम माय साइड कि ग्रुप टाइमली बंद हो जाए. सो नो इश्यूज. Only few questions of this chapters are left. उसके बाद we'll do another interesting chapter which is your algebra. ठीक है? algebra बहुत ही पुराना टॉपिक है मैथमेटिक्स का, है ना? बहुत ही पुराना. जितने भी हमारे पुराने मैथमेटिशियंस हैं ग्रीक के स्पेशली, उन्होंने ये algebra में बहुत काम किया है. So this is a very interesting topic, algebra. 10th chapter, I think by Monday we'll finish this chapter, and on Monday itself we'll start this chapter algebra. So before that, okay, so we'll continue further in our next class.